Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. Several pockets of Hindu population like Habba Kadal, Renawari and Karan Nagar have become ghost towns. There were numerous pressures that forced these Hindus to leave. Children had no schools to go to. Colleges were closed. Weeks of curfew had converted homes into prisons, often without electricity, water and food. But most of all, it was the tension of being a minority in an increasingly fanatical atmosphere, where the very air they breathed was laden with violence and fear. They have left secure jobs, sometimes of 20 years, established businesses running for generations, and even properties and orchards to a blank, uncertain future with marginal help from the government. Why, they ask, should we be refugees in our own country? हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं. Suddenly, her mother, who was sitting next to her, began to weep. दुखी इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं. मैं भी इसकी एक बेटी हूँ. ये इसलिए रोती है. हम क्या करेंगे? Less than 3 years ago, these people led normal, average lives in Kashmir. In the last 6 months, that normal world is now sadly part of their good old days nostalgia. तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ. मन करता है वापस जाने का? हाँ. क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं. क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? ना. तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही. तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं. Large-scale migration began when the release of Rubia in exchange for 5 militants led to mass hysteria in most parts of the valley. The next phase came in the 3rd week of January when huge processions were taken out in the valley, processions in which many Hindus were forced to march in front. हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे. ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफा. Hopelessly outnumbered, most of the 1,40,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. More than 90,000 of them sought refuge in Jammu, Udhampur, Nagrota and Kathua. Another 6,000 moved to Delhi. More than 2,006 reached Amritsar and other parts of Punjab. Yet another couple of thousand scattered in various other directions. The government has so far made only marginal arrangements for their rations. A large majority of them have not found accommodation in the limited number of camps set up by the government. मुझे पहले भी थ्रेटनिंग आ रही. अब आप वापस जाएंगे कभी? नहीं, मैं नहीं जा सकता. तो क्या करेंगे आगे? क्योंकि यहाँ अगर वहाँ से वो ऑफिसर है, उससे बेहतर है यहाँ गली कोचों में भीख मांगना और अपने हाल को पालना, आज़ादी से रहना, बगैर किसी थ्रेट के यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहना. सारा परिवार आ गया? कोई वहाँ नहीं बचा? नहीं महाराज, नहीं, उधर कोई नहीं. क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर ऐसे सब लोग आ गए तो हम भी आ गए. क्या कहेंगे उधर? The migrants have had to leave behind everything. Their bank accounts and valuables kept in lockers are practically frozen. There are hectic distress sales of ornaments by the women in order to subsist. In Jammu, land prices and house rents have shot up all of a sudden. जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते हैं इधर की कमाइयाँ इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ. हम खाली 3 कपड़े में आए वापस. मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता है. क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे. इसका क्या मतलब हुआ? ये कि मतलब मुफ्त में मिलेगी. People who are doing well now find themselves looking for employment. We met a school teacher from Shopian who has started learning how to sew in order to earn a living. अगर हमें कोई सिलाई का काम मिल जाए तो हम कर लेंगे, कोई कढ़ाई या सिलाई या टाइप शर्ट हैंड तो आता नहीं, टाइप तो आता है. तो मैं वो अगर किसी जगह हमें वो जॉब मिल जाए तो मैं कर लूँगी. तो अब पढ़ाई तो आपकी रुक गई होगी? हाँ. अब क्या होगा? अब पता नहीं आगे क्या करेंगे. अब क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो कहते हैं अब ऐसे ही बैठना है. Kashmiris in the valley have now begun to feel the economic pinch. In contrast with the prolonged bunds witnessed earlier,
There is now an urge to open shops even in the brief periods of relaxation of curfew. हम देखेंगे कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेंगे कश्मीर को? वो हमारा खून है, हमारी मातृभूमि है। क्यों छोड़ेंगे? जो वहाँ पर पाकिस्तान मांगे हम उसको उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे, मगर पाकिस्तान वहाँ पर बनने नहीं देंगे। The common crime of all the 1 lakh Hindu migrants from the Kashmir Valley is that they are Indians, that they are not part of the revolt by a large mass of the Muslim population of Kashmir who are crying for secession. वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू को बुरी नज़र से ज़रा देख रहे हैं, सिख को भी देखते हैं मगर कम। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या नाम दे सेड कि व्हेन माय पेरेंट्स वेंट दे सेड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो, खुद भी मरोगे हमें भी मरवाओगे। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। अगर आज़ादी वहाँ हो भी जाए तो वो सारे हिंदुओं को क्रैश करेंगे, जैसे पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं का नाम निशान ही नहीं है। बिल्कुल, हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है, लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीरी का खून इतना गंदा है, वो किसी कश्मीरी पंडित को जबरदस्ती करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। Ironically, the Hindus did not want to leave but left. The nation did not want the exodus to happen but couldn't prevent it. And even the Muslim fundamentalists tried to stop the Hindus from vacating the valley but couldn't succeed. They wanted the Hindus to stay back because they feared the administration had tipped off the Hindus to sneak out so that a massive crackdown became possible. मैं तो जा रहा हूँ सड़क पर, कोई आएगा इतना सा बच्चा बोलता है, गाली बहन की गाली देता है, माँ की गाली देता है, उसको क्या कहेंगे? कहने के लिए उसको कोई यहाँ से रिटर्न तो आंसर नहीं दे सकते। Although there was widespread demoralization of the Hindu migrants, there were sparks of aggressive feelings too. हमसे कोई टक्कर लेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे ऐसा बदला लेंगे। क्या करेंगे? बदला लेंगे क्या? उससे बदला लेंगे जैसे आज उन्हें हमको किया है, हम उनको परसों हिंदुस्तान से ही भगा देंगे। उन्होंने हमें सिर्फ कश्मीर से भगाया, हम उन्हें सारे पूरे जहां से खत्म कर देंगे। It is true that Kashmiri Pandit girls have been special targets of verbal harassment in the valley, although stories of their frequent molestation are highly exaggerated. मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था? अच्छे सलूक। कोई बुरा सलूक नहीं किया? नहीं। कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो? नहीं। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ, लड़कियाँ छोड़ जाओ, अपनी हम पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ। अभी तक ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, तो यानी वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कोई बात सच होगी, कोई बात झूठ होगी। There are reports that mullahs from other parts of the country have gone and taken positions in mosques in the valley. Islamic fundamentalism has registered a higher pitch. We went to Anantnag, which had witnessed organized communal riots in 1986, in which several places of worship were destroyed. A large number of Hindus had migrated from here then. Most of them have fled now. We talked to a Hindu surrounded by his Muslim neighbors. अगर खाली फ्रीडम होता, भाईचारा होता तो तब तो हम कहते कि ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उससे डरते हैं कहीं अगर इस्लामिक रूल हो जाए तो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिल जाएगी नहीं। आप भी भागेंगे क्या? अगर ऐसा हो गया कि माहौल ख़राब ज़्यादा हो गया तो नेचुरली हमको भागना पड़ेगा। तो ऐसा आप कब मानेंगे कि माहौल ख़राब हो गया? वैसे माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ पे 98% भाग गए हिंदू। It was in Shopian, a small town where 2 days after the release of Rubia Sayyed, a mob affected by mass hysteria had burned down a place of worship, attacked the Hindus and destroyed their properties. मंदिर को क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताऊं, ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे, तो एक्चुअली निशाना उनका वो था। तो जो आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो सब लपेट में आ ही जाता है। This time in Shopian, the news track team was surrounded twice by this mob, militant and ready to kill. Their suspicion was that we were members of the Shiv Sena and had gone there to spy. Only after a half-an-hour detention, interrogation and a thorough search were we allowed to proceed. We met a Kashmiri Pandit, one of the very few who had stayed back. Why did he not flee? ऐसा क्यों है? वो
अगर उस वो पूरी वो जो है 100%, हाँ हमको भी वो 10% या 12% वो डर भी है, लेकिन फिर हमारा वो जो है मेरा फादर ये सोचता है कि हमने 47 में भी देखा है या बाकी चीज़ देखे हैं, जब अगर मार रहा है क्या पता है इधर भी अगर हम भगवान ने लिखा है तो हम यहाँ पर भी मार सकते हैं, अगर वहाँ लिखा होगा तो वहाँ पर, लेकिन मारना तो एक बार है. While the Indian government is gradually trying to get a grip on the Kashmir problem, Pakistan is trying its best to queer the pitch as much as possible. Addressing a massive public meeting in Muzaffarabad recently, Bhutto boasted of the passionate reception she was accorded by Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अगर मकबूजा कश्मीर जाए तो वहाँ के अवाम उनके लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता है कि उनके लिए निकलेंगे. मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो समझते हैं कि अवाम प्लेबसाइट नहीं चाहते तो फिर जा करके देख ले, वो जगमोहन का जगमोहो हदन हो जाएगा. Benazir Bhutto, as you know, has been training her guns against me personally. She had been shouting from the housetops and get out Jagmohan, somehow or the other. This was precisely because the game plan which she had worked out, it fizzled, and these forces understood that I was the main stumbling block in their plan. Acutely aware of India's overwhelming military superiority over Pakistan, Bhutto has missed no opportunity to add fuel to the fire. अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाने. Bhutto's haranguing tirades and wild promises on Pakistan television, also seen on the Indian side, have done enough to whip up mass hysteria. कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं. कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है. कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है, क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं. वो वारिस हैं तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस हैं, और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस हैं तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस हैं. वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे, अपने हक को लेकर जिएंगे. As the death toll rose in the province of Sindh, Bhutto exposed her own weakness by calling the Pakistani army to crush the agitation in Sindh. पाकिस्तान का रोल हमारे लिए ठीक नहीं है. कैसे? वो हमेशा चाहता कश्मीरी को जलील करना. वो नहीं चाहता कश्मीरियों को इज्जत मिलना चाहिए. नहीं, वो अपने घर नहीं संभालते. देखो कितने 100 आदमी मर रहे हैं वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है. वहाँ आपस मुसलमान को मारते हैं. उससे अच्छा हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमें इज्जत है, भाईचारा है, सब कुछ है. आवाम की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ अपनी आजादी खुद लेंगे. हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी. हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी. हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी. हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी. बच्चा बच्चा कहेगा